Assalamu alaikum students. Our today's topic for 11th class is anatomy of flowering plants. We are going to start this new chapter, anatomy of flowering plants. First we should know what the anatomy is. Plant anatomy. Anatomy is the study of internal structures, and plant anatomy is the study of internal structures of plants. That is, the study of internal structure of plants is called plant anatomy. Now, what is the importance of this plant anatomy? As you know, anatomy is the study of internal structures of plants. The importance of the plant anatomy is anatomy or study of internal structures is useful in knowing the structural peculiarities of different groups of plants. Study of internal structure is useful in knowing the structural peculiarities of different groups of plants. Second importance is it indicates the structural adaptation of plants to diverse environments. It provides information to functional organization of higher plants. Structural details of different organs in different groups of plants are known. And also anatomy is useful for knowing homology, that is phylogenetic similarity, and analogy, phylogenetic dissimilarity. It has also solved several taxonomic problems. It is also useful in determining the purity of articles of daily use like tea, coffee, cocoa, tobacco, vegetables, dyes, spices, saffron, etc. It also plays an important role in plywood industry. Plywood industry depends upon the knowledge of wood anatomy. Wood anatomy also helps to differentiate the superior and inferior standard and substandard are specified and unspecified woods. Forensic science employs plant anatomy for identifying pieces of plant matter sticking to dead bodies and articles used by criminals. These are some of the importance of plant anatomy. As students, as you know, the plants start their life from cells. A group of cells then form a tissue. Then tissues form tissue system. Tissue system forms organ, and organ forms organ system, and organ system finally forms a plant. Now we will start what the tissue is. A tissue is a group of cells, as you know. Tissue is a group of cells having a common origin and perform similar functions. A tissue is a group of cells having a common origin and perform similar functions. So far as these tissues are concerned, there are two types. On the basis of power of division, tissues are of two types: meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is a tissue which divides continuously. इसके अंदर मेटाइड डिवीजन होता रहता है कंटिन्यूसली. परमानेंट टिश्यू के अंदर मेटाइड डिवीजन दे लूज एबिलिटी टू डिवाइड. So on the basis of power of division, tissue is of two types: meristematic tissue and permanent tissue. जहाँ तक
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ताल्लुक है, इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्लांट, दैट एज यू नो, जब सीड हम ग्रो करते हैं, सीड के अंदर ऐसे कॉटलीडन होता है और पेरिम्यूल एंड रेडिकल होता है. पेरिम्यूल के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दिस गिव्स राइज टू द शूट एंड रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट. दैट इज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, पहले ही प्लांट के अंदर जब मौजूद होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्लांट, यानी पेरिम्यूल रेडिकल से ही शुरू होता है. जहाँ तक सेकेंडरी टिश्यू का ताल्लुक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का ताल्लुक है, दे आर फॉर्मड लेटर ऑन फ्रॉम परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू से बनते हैं लेटर ऑन डी डिफ्रेंशिएशन के जरिए परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट होता है इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. पहले हम जाएंगे इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. These are small young cells which have the ability to grow and divide. Now we are discussing characteristics of meristematic cells. इनकी क्या characteristics हैं? These are small young cells which have the ability to grow and divide. Number one. Number two, they do not have intercellular spaces. meristematic cells के अंदर intercellular spaces नहीं होती हैं. Number third, the walls are thin, elastic and made of cellulose. इनकी जो walls होती हैं thin होती हैं, elastic होती हैं और they are made of cellulose. Number four, nucleus is prominent and cytoplasm is dense. Prominent nucleus इनके अंदर होता है और dense cytoplasm इनके अंदर होता है. Vacuoles are absent, या तो absent होते हैं, if present they are very small. रेट ऑफ रेस्पिरेशन इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी हाई. बायोसिंथेटिक एक्टिविटी इज़ आल्सो वेरी हाई. और रिजर्व फूड इज़ लिटल, रिजर्व फूड बहुत कम होता है, बट फूड सप्लाई इज़ क्वाइट हाई. फूड सप्लाई जो होती है क्वाइट हाई होती है. दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर वन, दे आर स्मॉल यंग सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड. They do not have intercellular spaces. The walls are thin, elastic and made of cellulose. Nucleus is prominent and cytoplasm is dense. Vacuoles are absent or very small. The rate of respiration is very high. Biosynthetic activity is also high. Reserve food is little, but food supply is quite high. These are some of the characteristics of meristematic cells. Now, so far as this meristematic tissue is concerned, it is composed of, it is divided into primary meristem and secondary meristem. Primary meristem मैंने आपको बताया, they are present from the beginning, जैसे कि मैंने सीड के अंदर बताया पेरिम्यूल रेडिकल होता है, उनके अंदर प्राइमरी मेरिस्टम होता है. और जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, दे आर फॉर्म लेटर ऑन फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू से बनते हैं लेटर में, इनकी परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट होता है इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय डी डिफरेंशिएशन. प्राइमरी मेरिस्टम का ताल्लुक जहाँ तक है, they are further divided into apical meristem, that is shoot apical meristem and root apical meristem. यानी कि शूट के एपेक्स में होते हैं और ये रूट के एपेक्स में होते हैं. दूसरा है ऑक्सिलरी बड और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम. होता क्या है एक्चुअली, अगर हम यहाँ प्लांट की डायग्राम बनाएंगे, दिस इज रूट एंड दिस यू नो इज द शूट. शूट के टिप के अंदर होता है, रूट टिप्स के अंदर होता है. दिस इज द एपिकल, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. क्योंकि प्लांट ग्रो करता रहता है और ये मेरिस्टम ऊपर चला जाता है. सम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स पीछे रह जाती है नोड्स पे चंद सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स रह जाती हैं, जिनको एक्सिलरी बड्स कहते हैं, जहाँ से नया लीफ या ब्रांच ग्रो करेगा.
या तो ब्रांच बनेगा या लीफ बनेगा। इससे हम कहते हैं एक्सिलरी बड, इनके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक मौजूद रहता है। और तीसरा है इसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे रहते हैं साइड में, ये साइड में रहते हैं, जैसे कि ग्रासेस के अंदर जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं जो ग्रास को खा जाते हैं ऊपर से, तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है ये उनकी ग्रोथ में मदद करता है। ग्रास नए सिरे से फिर उगता है, या सीरियल्स के अंदर जो पत्ते झड़ जाते हैं वहाँ से नए पत्ते उगते हैं, वो इसी इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से होते हैं। वो प्राइमरी मेरिस्टम जो है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। दूसरा है ऑक्सिलरी बड। ऑक्सिलरी बड क्या होता है कि जब ये एपिकल मेरिस्टम ऊपर चलता है थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो यहाँ नोड्स पे रह जाती हैं और वहाँ से नोड से बड निकलता है जिसे हम ऑक्सिलरी बड कहते हैं, जिसके अंदर फिर नया ब्रांच बनता है। तो इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी बड्स। और उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, सम ऑफ द मेरिस्टम रिमेन्स इन द साइड्स जस्ट लाइक दिस, साइड में रहते हैं, जैसे कि आप ग्रास में पाओगे। ग्रास में जब ग्रेजिंग एनिमल जब इनको ग्रास को खाते हैं ऊपर से, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इस ग्रास को नए सिरे से उगने में, नए सिरे से ग्रो करने में मदद करता है। तो दिस इंटरकैलरी मेरिस्टम। दूसरा रहा फिर सेकेंडरी मेरिस्टम, दिस फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू। हम आगे पढ़ेंगे, इसके भी 2 हिस्से होते हैं, कार्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। तो आज के लिए इतना काफ़ी। क्या पढ़ा हमने, एनाटमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट एनाटमी। तो उसके बाद मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटमी क्या है। एनाटमी और स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज यूज्फुल इन नोइंग द स्ट्रक्चरल peculiarities of different groups of plants. Number 2, it indicates the structural adaptation of plants to diverse environments. Number 3, it provides information to functional organization of higher plants. Number 4, structural details of different organs in different groups of plants are known. Number 5, anatomy is useful for knowing homology, that is phylogenetic similarity, and analogy, that is phylogenetic dissimilarity. Number 6, anatomy has solved several taxonomic problems. Number 7, it is useful in determining the purity of articles of daily use like tea, coffee, coca, tobacco, vegetables, dyes, spices, saffron, etc. Plywood industry depends upon the knowledge of the wood anatomy. Wood anatomy helps differentiate the superior, inferior, standard, and substandard or specified and unspecified woods. It also helps in the forensic science, employs plant anatomy for identifying pieces of plant matter sticking to dead bodies and articles used by criminals. उसके बाद हमने पढ़ा है व्हाट टिश्यू इज, कि प्लांट अपनी लाइफ जो है सेल से शुरू करता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से प्लांट बनता है। टिश्यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूस रहता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर माइटोटिक डिवीजन नहीं रहता है। दे बिकम स्पेशलाइज्ड और वो लॉस करते हैं एबिलिटी टू डिवाइड। जहाँ तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ताल्लुक है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम होता है दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया कि सीड के अंदर पहले मूल और रेडिकल से ही शुरू होता है। और सेकेंडरी मेरिस्टम जो है दिस फॉर्म्स लेटर ऑन फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टम बाय डिफरेंशिएशन। प्राइमरी मेरिस्टम मैंने बताया कि इसके 3 पार्ट्स हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, ऑक्सिलरी बड एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। शूट और रूट एपिकल मेरिस्टम आपको पता है, शूट के एपेक्स में और रूट के एपेक्स में दिस एपिकल मेरिस्टम। उसके बाद while the growth of the plant, some of the meristematic cells remains at the nodes which form the branch, उसको हम ऑक्सिलरी बड कहते हैं। और कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स साइड में रहते हैं, जैसे कि ग्रास के अंदर आप पाओगे, ग्रास को जब ग्रेजिंग एनिमल्स खा जाती हैं तो ये साइड वाला मेरिस्टम जो है जिसको नए सिरे से ग्रो करने में मदद करता है।
तो मैंने ये भी बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर स्मॉल यंग सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड। Number 2, they do not have intercellular spaces. Number 3, the walls are thin, elastic and made of cellulose. Number 4, nucleus is prominent and cytoplasm is dense. Number 5, vacuoles are absent or very small. Number 6, rate of respiration is very high. Number 7, biosynthetic activity is also high. And number 8, reservoir food is little but food supply is quite high. This is all about the primary meristem. Tomorrow we will be discussing secondary meristem, और वी कैन डिस्कस परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे उस वक्त हम सेकेंडरी मेरिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।